फिल्टर मेथड की एक और मेथड आता है जिसमें हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन गेन या गिनी इंडेक्स से. Let's try to understand what is this information gain. Ginny index is approximately same, but we will focus on information gain. So information gain में हम क्या करते हैं? Information gain generally decision trees में यूज होता है and इसको हम यहाँ पर इस तरीके से यूज करेंगे because information gain से कहीं ना कम हम पहले uncertainty निकालते हैं. So uncertainty in attribute 1. Now if we can reduce this uncertainty to a very good extent with the help of another attribute A2. So uncertainty about attribute A1, given that you know the value of attribute A2. So if you have the value of A2, तब A1 में कितनी uncertainty बच गई? यदि ये uncertainty काफ़ी कम बच जाती है, then we can think about it as a correlation coefficient या correlation measure, based on which we can think about okay whether we should remove it or we should keep it. So what is this uncertainty? Uncertainty, let's try to understand this uncertainty. Uncertainty means that how much you don't know about the outcome of an experiment. So if you select a sample, whether it is a head when you toss a coin, whether it comes a head or whether it comes a tail, how much you know. So if you don't know anything about it, you say that it is most uncertain because every outcome is taking the equal opportunity, equal chances. While if there is a certain event when the probability is 0, then the uncertainty count is 0. This is uncertainty on the y-axis, and on the x-axis there is the probability. So if something has a 0 probability, you are sure that it is certain that this event cannot happen, this outcome cannot come. Similarly, if you have a probability 1, then you are sure, you are certain that the outcome will be there. But if you come just in between, where you cannot say which outcome, how much you can say, every outcome is equally likely, then the uncertainty is maximum. And that is the uncertainty. So if some attribute can help me reduce this uncertainty, so let's suppose in the 25% of time it can actually tell me something about it, or in the 75% of times it can tell me something about something, it might help me reducing the entropy of another attribute. यही कारण है कि हम एंट्रोपी या अनसर्टेनिटी रिमूवल या फिर इंफॉर्मेशन गेन, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को जानने से हमें दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, इस चीज़ को हम यूटिलाइज कर सकते हैं उस कोरिलेशन कोएफिशिएंट की तरह, सो दैट यदि कोरिलेशन जो है एट्रीब्यूट्स के बीच में बहुत हाई आता है, देन वी कैन ड्रॉप वन ऑफ देम, और यदि कोरिलेशन बहुत लो आता है टारगेट एट्रीब्यूट के साथ में, then also we can drop that particular attribute. Okay, so the next one is chi-square test for independence. chi-square test एक statistical test है जहाँ पे हम independence की बात करते हैं. Independence means if you have thought of okay, this is how things must happen, but when you did the experiment, you found that those outcomes are not coming, some different outcomes are coming. So we take this particular formula, we try to understand whether the two outcomes, one is desired, another is experimentally coming, observed, so this is observed one and this is expected one, and we take the squared sum of squared differences, and if this difference, this chi-square value
comes very large, then we say that okay, there is a lot of difference between the expected and the observed, so therefore there must be a lot of difference, there must be independence between the two quantities. दोनों एट्रीब्यूट जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और यदि इन दोनों में बहुत कम अंतर आता है, काई स्क्वायर की वैल्यू काफ़ी कम आती है, then we must suppose that they may be dependent. Given that one particular attribute, you may infer about something about the other attribute, and this can also be used as a correlation thing. Okay. अब हम आगे चलते हैं. एक रैपर मेथड हमने शुरू में देख रहे थे हम कि रैपर मेथड भी कुछ होता है. रैपर मेथड्स क्या होता है? रैपर मेथड्स, अभी पिछले फिल्टर मेथड तक हमने क्या बात की थी, हम एट अ टाइम एक या दो एट्रीब्यूट की बात कर रहे थे कि क्या दो एट्रीब्यूट में कोई रिलेशन है या नहीं है. हम दो एट्रीब्यूट से ज़्यादा किसी चीज़ को भी एक साथ डिस्कस नहीं कर रहे थे. पर आप सोचिए कि क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो तीन एट्रीब्यूट की जोड़ी जो है इन अ पेयर दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर, बट अलोन दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड. तो रैपर मेथड इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को केटर करता है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. सो रैपर मेथड में हम क्या करते हैं कि हम पूरा का पूरा एक कैंडिडेट सेट लेते हैं फीचर्स का, और उसके ऊपर प्रेडिक्शन की परफॉर्मेंस निकालते हैं. नाउ इफ द परफॉर्मेंस इज कमिंग वेरी लो, वी विल रिजेक्ट इट, राइट? और you can say if it is coming out to be very good, then we select it. Let's just try to see this particular algorithm. एक बार इस एल्गोरिथम को देख लेते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी क्या है, 0 हमने इनिशियलाइज कर दी, और बेस्ट फीचर सेट हो गया हमारा एम्प्टी सेट. नाउ व्हाट विल डू, हम बहुत सारे सेट्स बनाएंगे, सारे सबसेट्स बना देंगे फीचर्स के, जो भी एफ में है उन सारे फीचर्स का एक सबसेट बना देंगे. अब हर एक सबसेट के लिए जो कि उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे. कैसे करेंगे? लेट्स ट्राई टू सी. हम सबसे पहले उन सेट्स पे, मतलब उस फीचर के स्मॉल सबसेट एस पर हमने मशीन को ट्रेन किया, उस पर प्रेडिक्शन ली. यदि इसकी परफॉर्मेंस पुरानी परफॉर्मेंसेस से काफ़ी अच्छी आ रही है, बेहतर आ रही है, तब हमने परफॉर्मेंस भी बदल ली और हमने सेट भी चेंज कर लिया, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि भाई इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आ रही है तो ये इसको ले लेते हैं. नाउ दिस कुड बी वन ऑफ द वेज टू सेलेक्ट द कैंडिडेट सेट. लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव है. यदि हमारे पास में n फीचर्स हैं तो 2 to power n हमारे पास में सबसेट्स बनेंगे, और 2 to power n सबसेट्स को चेक करने का मतलब है इट्स हाईली कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव. ओके, सो जो इस कंप्यूटेशनल एक्सपेंस को कम करने का जो तरीका है वो मेजरली हमने आइडेंटिफाई किया कैंडिडेट सेट्स की को फाइंड आउट करने में कि नेक्स्ट कैंडिडेट सेट, नेक्स्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट सेट कौन सा हो सकता है. यदि हम वो प्रॉमिसिंग कैंडिडेट सेट सबसेट जो है वो ज़्यादा अच्छे से पता कर पा रहे हैं तो हमारी जो एल्गोरिथम है वो फास्ट हो सकती है, हमें कम समय लगे, कम रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे. एंड दैट्स व्हाट द रैपर मेथड्स आर ऑल अबाउट. सो क्या क्या हम कंसिडर कर सकते हैं? हम 1 by 1 ऐड कर सकते हैं या 1 by 1 रिमूव कर सकते हैं. सो दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि आपको जो जो अच्छा एट्रीब्यूट मिलता जा रहा है आप उसे ऐड करते जा रहे हो, या फिर आपने सारे एट्रीब्यूट एक साथ ले लिए और फिर उनमें से धीमे धीमे एक एक करके बाहर निकालते जा रहे हो. दैट कुड बी द वेरिएशंस. As we have already seen that they could be computationally expensive, so yes, there is a problem. Okay, let's discuss one such algorithm that is called recursive feature elimination. रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन को हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक बेस मॉडल लेते हैं. बेस मॉडल एक लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, या डिसीजन ट्री हो सकता है, या कोई और भी मॉडल भी हो सकता है. वी कैन टेक एनी मॉडल. इसके बाद मॉडल लेने के बाद में हम फीचर्स की रैंकिंग करते हैं
फॉर एग्जांपल यदि लीनियर रिग्रेशन के केस में लें तो जो कंट्रीब्यूशन या वेट आ रहा है एक पर्टिकुलर फीचर का, उस वेट के अकॉर्डिंग हम उस फीचर की रैंकिंग कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ कमिंग आउट टू बी वेरी हाई मैग्नीट्यूड, हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यदि उसका जो कोफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, इसका मतलब यदि उसमें थोड़ा भी चेंज करेंगे तो उस फीचर में यदि थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो आउटपुट में बदलने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे फीचर्स को लेकर के हम स्कोर कर देंगे। सो असाइन द इम्पोर्टेंस स्कोर टू ईच फीचर। स्कोर इंडिकेट फीचर्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडल्स प्रेडिक्टिव पावर, बिकॉज यदि उसकी, जिसे यदि हम बात कर रहे हैं वेट की, उसके मल्टीप्लायर की, जैसे यदि हम लीनियर फीचर ले लेते हैं, तो लीनियर फीचर लेने के साथ में क्या होता है, x1 यहाँ पर फीचर है प्लस bx2 प्लस cx3 एंड सो ऑन। अब यदि इनमें से c बहुत बड़ा वैल्यू आती है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, तो मतलब x3 का कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है उस मॉडल को के प्रिडिक्शन में, उस मॉडल की जो वैल्यू सेट होगी उसमें। तो जो ये एट्रीब्यूट है x3, दिस इज हाईली इम्पॉर्टेंट। सो इस तरीके से हम फीचर रैंकिंग कर सकते हैं। नाउ वी विल एलिमिनेट वन फीचर विच हैज द लीस्ट इम्पॉर्टेंस स्कोर, राइट, वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड देन रिकर्शन। सो इन तीनों स्टेप्स को बार बार करते रहेंगे, फिर से कोई दूसरा हम एक बेस मॉडल ट्रेन करेंगे, जो बचे हुए फीचर्स हैं उनके ऊपर फिर से उनकी रैंकिंग करेंगे और फिर एलिमिनेट करेंगे। और ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि हमें डिजायर्ड नंबर ऑफ फीचर्स नहीं मिल जाते हैं। द ऑर्डर इन विच फीचर्स आर एलिमिनेटेड बिकम्स द रैंकिंग ऑफ द फीचर। फीचर्स एलिमिनेटेड लेटर आर कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट दैन फीचर्स एलिमिनेटेड अर्लियर। तो सबसे पहले फीचर निकल गया वो डेफिनेटली सबसे कम इम्पॉर्टेंट था, और जो बाद में निकला वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो इस तरीके से हम फीचर्स की रैंकिंग कर पाते हैं, और इस कारण से हम एक एलिमिनेशन करके लेसर फीचर्स को कीप करने की कोशिश करते हैं, आई मीन फीचर सिलेक्शन करते हैं। लास्ट मेथड हमारे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लासो, जो कि एम्बेडेड मेथड्स का एक तरीका है। एम्बेडेड मेथड्स में मॉडल खुद ये तय करने की कोशिश करता है कि कौन से फीचर्स बेटर हैं और कौन से फीचर्स ख़राब हैं, और जो फीचर बेटर हैं उनको वो रखने की कोशिश करता है। तो अभी हम जो एक बात कर रहे थे कि लीस्ट रिग्रेशन या रिग्रेशन से हम इम्पोर्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है वेट जो कि उस पर्टिकुलर फीचर को मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट विच is going to multiplied with the feature value. So यदि मैग्नीट्यूड हाई होगा तो फीचर में थोड़ा भी चेंज डिसीजन वैल्यू में काफ़ी बड़ा चेंज लेके आएगा, और वो बड़ा चेंज जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा इस बारे में कि वेदर इट शुड बी, मतलब जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो उस डिसीजन को फाइनलाइज करने में मदद करेगा। उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि किसी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें एक लॉस फंक्शन होता है जिसमें जो गिवन टारगेट रेस्पॉन्स है वो हमको मिला हुआ है, और एक प्रिडिक्टेड रेस्पॉन्स है जो हम देख रहे हैं। सो इन दोनों के ऊपर, इन दोनों में जो डेविएशन है, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम लॉस बोलते हैं। और दूसरा पार्ट होता है हमारा मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी का। सो दिस रिप्रेजेंट्स द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। सो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी क्यों लेते हैं, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि यदि बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल आपने ले लिया तो वो डेटा पे बहुत अच्छे से फिट कर जाएगा और ओवरफिटिंग कर देगा। ओवरफिटिंग करने का मतलब क्या होगा, ओवरफिटिंग करने का मतलब ये होगा कि आप जैसा जैसा चाहते हो, ट्रेनिंग में जो डेटा आपको मिला है बिल्कुल उसने वैसा का वैसा लर्न कर लिया, बट जब टेस्ट की बात आ रही है
तब वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, टेस्ट डेटा पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सपोज कीजिए कि आप कोई भी चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। अब जब डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं तो क्योंकि सेंसर्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और कारण हो सकता है, तो उसमें कुछ एरर आ जाती हैं। अब यदि समहाउ हमारा जो मॉडल है, यदि वो नॉइज़ भी लर्न कर लेता है, तो डेफिनेटली वो नॉइज़ जो उसने लर्न किया है ये बाद में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या एरर्स के फॉर्म में हमें मिलेगा, और हमारा जो मॉडल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और इस कारण से वो कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लेगा जब भी उसको प्रिडिक्शन करनी होगी। सो दोनों ही फैक्टर है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसकी प्रिडिक्टिव पावर ही ख़राब हो जाएगी, और रीज़न उसका यही है कि उसने नॉइज़ भी लर्न कर लिया, और उस नॉइज़ के लर्न करने के कारण से वो अब अननोन टेरिटरी को, जिसके मतलब जो फीचर्स अननोन है, जो सैंपल अननोन है, अभी तक देखा नहीं गया है, उस सैंपल के बारे में ठीक से प्रिडिक्ट कर पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। सो ये जो ओरिजिनल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच का जो लॉस है, इसको एम्पेरिकल लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। और इस एम्पेरिकल लॉस को कम करने के लिए हम कई तरीके के वेरिएशंस यूटिलाइज करते हैं। लेट्स सी दैट। अब एक चीज़ देखते हैं, यदि ये गामा एक पॉजिटिव वैल्यू है, नॉन नेगेटिव वैल्यू है, नहीं इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, सो पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो, एग्जैक्टली ग्रेटर देन जीरो। यदि गामा बहुत बड़ा रख लेते हैं, सपोज कीजिए हम गामा बहुत बड़ा कर देते हैं, तो बहुत बड़ा करने से क्या होगा, यदि कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन की थोड़ी भी बढ़ी तो ये पूरा का पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण से जब ये मिनिमाइजेशन फंक्शन जब हम लगा रहे हैं तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। आप कहोगे कि भैया कॉम्प्लेक्सिटी को कम करो, भले ही थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है होने दो, और वहीं पर यदि गामा बहुत छोटा कर दिया जाए, 1 से कम कर दिया जाए, 1 और 0 के बीच में ले आ जाए, तो जाहिर सी बात है लॉस, इस पर्टिकुलर लॉस की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, उसकी वेटेज बढ़ जाएगी। तो हम पहले इसके ऊपर फोकस करेंगे कि इसको कम करें। सो जनरली गामा इज कॉल्ड अ ट्रेड ऑफ फैक्टर, ठीक है। सो ट्रेड ऑफ फैक्टर होने से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हम किसी को भी वेटेज दे पा रहे हैं, या तो एम्पेरिकल लॉस को या फिर मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को, और दोनों ही हमें बेहतर चाहिए इन सम वे। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं मशीन लर्निंग मॉडल का, जो कि एक लीनियर मॉडल है। यदि हम लीनियर मॉडल की बात करते हैं तो फंक्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है, एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू प्लस बी। एक्स ट्रांसपोज क्यों कह रहे हैं? एक्स एक फीचर वेक्टर है, सो डी डायमेंशनल फीचर वेक्टर डिस्क्राइबिंग ith सैंपल। डी डायमेंशनल होने का मतलब क्या होगा कि इस xi में डी कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमने CPU की बात की थी कि वो कई एट्रीब्यूट से डिफाइन हो रहा है, इसी तरीके से ये xi भी कई एट्रीब्यूट से डिफाइन हो रहा है, डी एट्रीब्यूट से डिफाइन हो रहा है इनफैक्ट। और हर एट्रीब्यूट के साथ में आपने एक मल्टीप्लायर लगा रखा है, W1 W2 WD, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने एक लीनियर फंक्शन बना रखा है, और हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो लीनियर मॉडल है दैट इज आवर फंक्शन। अब चूंकि हमें W नहीं पता है, तो ये f जो है एक फैमिली से बिलोंग करता है, लीनियर फंक्शंस की फैमिली से बिलोंग करता है। और दूसरा उसके बाद में हमारे पास में है एक ट्रेनिंग डेटा, जिसमें कि n डेटा पॉइंट्स हैं, स्मॉल n डेटा पॉइंट्स हैं। yi हमारा एक लेबल है, टारगेट लेबल, जो कि xi के करस्पॉन्डिंग है, और w और b हमारे मॉडल पैरामीटर्स हैं। ओके, नाउ एक बार दोबारा से हम क्या करते हैं, इस लॉस फंक्शन का एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। सो कई बार हम स्क्वायर्ड लॉस लेते हैं। सो स्क्वायर्ड लॉस कैसा दिखाई देता है, क्योंकि हमने मॉडल का जो वैल्यू है, आउटपुट है, वो हमने इस तरीके से मानी, लीनियर फंक्शन बनाया, तो हमने मॉडल की जो आउटपुट आएगा उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। नाउ लॉस फंक्शन कुड बी समथिंग लाइक दिस, ये आपने स्क्वायर्ड लॉस फंक्शन हमें निकाल लिया कि कितना लॉस हो रहा है, राइट। लॉस को क्वांटिफाई करना था तो हमने स्क्वायर्ड लॉस निकाल के उसको क्वांटिफाई कर लिया। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं विच इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी में हमने यहाँ पर WJ के
मैग्नीट्यूड को या WJ को स्क्वायर करके सम कर लिया। अब ये WJ क्या है? WJ ये वही वेट्स हैं जो कि हर एट्रीब्यूट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो WJ इंटू W1 X1 प्लस W2 X2 W3 X3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो पहले जो डिस्क्रिप्शन है, पहला जो फीचर है उसके साथ में W1 मल्टीप्लाई होगा, दूसरे X2 के साथ में यानी कि दूसरे फीचर के साथ में W2 मल्टीप्लाई होगा और सो ऑन सो फोर्थ। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, हमने कैसे कॉम्प्लेक्सिटी का काउंट किया? हमने कॉम्प्लेक्सिटी को हमने इस बात से रिप्लेस किया है कि जो मैग्नीट्यूड है वेट्स का या कंट्रीब्यूशन का, उनका स्क्वायर का सम कम से कम होना चाहिए, बिकॉज वी आर मिनिमाइजिंग इट। क्योंकि डब्ल्यू स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, डब्ल्यू भले ही नेगेटिव हो लेकिन डब्ल्यू स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। अब चूंकि डब्ल्यू स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड के कम होने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी आप लीनियर फंक्शन ले रहे हो, इट इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द इनपुट डेटा। वो x1 x मतलब वो y से उसका एंगल जो आउटपुट है उससे उसका एंगल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब y की तरफ ना होकर के x की तरफ जो इनपुट स्पेस है उसकी तरफ झुकाव होगा, तो स्लोप जो है वो काफ़ी कम रहेगा। सो ऑल डब्ल्यूज आर एक्चुअली टेलिंग अस द स्लोप। तो स्लोप कम होने का फ़ायदा क्या है? स्लोप कम होने का फ़ायदा ये होता है कि यदि आपने सपोज कीजिए कि यदि हम एक उस पर बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। स्लोप कम होने का मतलब क्या होता है? स्लोप कम होने का मतलब ये होता है कि यदि ये स्लोप ज़्यादा ले लिया तो x में जो भी बदलाव आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना बदलाव आ रहा है। यदि y में कम बदलाव आ रहा है, क्योंकि स्लोप यदि कम होगा तो y में कम बदलाव आएगा, x में ज़्यादा बदलाव पे भी y में कम बदलाव आएगा। y में कम बदलाव आने का मतलब क्या है कि जो आपका आउटपुट है वो धीमे धीमे बदल रहा है x में बदलाव के रेस्पेक्ट में। यदि x में कोई भी बदलाव आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग y में जो बदलाव आ रहा है, यानी कि आउटपुट में जो बदलाव आ रहा है, प्रेडिक्शन में जो बदलाव आ रहा है वो कम आ रहा है। कम आने का फ़ायदा क्या है? कम आने का फ़ायदा ये है कि यदि x को हमने थोड़ा बहुत चेंज किया, यदि उसमें कोई नॉइज़ ऐड हो गया, तो सपोज करो कि इसमें कोई डेल्टा x नॉइज़ ऐड हो गया, ठीक है, ये डेल्टा x नॉइज़ आपको परेशान ना करे, इसकी वजह से आपका जो डिसीजन है वो कम से कम बदले। कोशिश ये होनी चाहिए कि नॉइज़ आ जाने से बहुत ज़्यादा ना बदले। यदि वो नहीं बदलेगा तो हमारा मॉडल रोबस्ट रहेगा, यानी कि उसकी प्रिडिक्टिवनेस एरर्स की करस्पॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, राइट। वो इतनी जल्दी फॉल नहीं करेगा एरर्स को लेकर के। ओके, इट्स दैट इज़ वाई हम ये मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को इस तरीके से ले रहे हैं। अब हाउ डज लोअरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ WJ हेल्प्स? सो वैसे भी हम बात कर चुके हैं कि WJ का मैग्नीट्यूड जो है, यदि हम उसको लोअर करते हैं तो हमारा स्लोप कम हो जाता है। स्लोप कम होने से जो चेंज इन आउटपुट है, प्रिडिक्शन है, वो कम आएगा एज कंपेयर टू x। और इस कारण से x में आने वाला कोई भी नॉइज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, उसकी प्रिडिक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लेके आएगा। पर हमारा फोकस तो सिलेक्शन ऑफ फीचर्स था, हम किस पे बात करने लग गए? ओके, लेट्स ट्राई टू री फोकस। हम बात कर रहे हैं फीचर्स के सिलेक्शन की। फीचर्स का सिलेक्शन कैसे होता है? फीचर का सिलेक्शन ऐसे होता है कि हम कोई फीचर ड्रॉप कर देते हैं। हम कहते हैं कि ith फीचर जो है वो ख़राब है, सो वो ith एट्रीब्यूट हम डिलीट करना चाहते हैं। पर सपोज कीजिए कि उसका वेट यदि 0 हो जाए, तो यदि उसका वेट 0 हो जाएगा तब वो फीचर ड्रॉप ही तो हो गया, बिकॉज नाउ इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द प्रेडिक्शन। सो यहाँ पर हम यही करने की कोशिश करना चाहते हैं कि वो उसका वेट ड्रॉप हो जाए। ओके, सच एट्रीब्यूट्स विथ 0 no longer contribute to the decision.